Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, we are discussing why do we fall ill. And in our previous class, we have discussed what is health, what is disease, what are the various type of disease, how you will differentiate between healthy and disease-free person, what are symptoms, what are sign, what are the various type of disease, and how does they spread from infected person to healthy person. So we have discussed disease spread by direct contact or by indirect contact. Okay. Disease spread by vectors. What are vectors? Vectors are those animals which carry disease causing microbes. For example, housefly and mosquito. ऐसे एनिमल जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स. और कॉमन वेक्टर्स कौन है? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो. For example, malaria. Malaria is caused by a protozoa and the name of that protozoan is Plasmodium. मलेरिया कॉज किससे होती है बेटा? प्लाज्मोडियम से. और मलेरिया को स्प्रेड कौन करता है? मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. तो फीमेल मॉस्किटो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. वाई फीमेल मॉस्किटो स्प्रेड द डिजीज़? बिकॉज दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. मेल मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट सेप. मेल मॉस्किटो प्लांट सेप पे फीड करते हैं, वो ह्यूमन ब्लड पे फीड नहीं करते. फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड पे फीड करती है. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फीमेल मॉस्किटो का ऑप्शन हमेशा एग्जाम में करेक्ट होगा. सो मलेरिया इज कॉज्ड by plasmodium and it is spread by the bite of female anopheles mosquito. Dengue fever is again caused by virus and it is spread by the bite of Aedes mosquito. Japanese encephalitis, which is also known as brain fever, is caused by virus and it is spread by the bite of Culex mosquito. African sleeping sickness is caused by trypanosomas and it is spread by the bite of tsetse fly. Amoebic dysentery is caused by amoeba, which is a protozoan, and it is spread by house fly, which contaminate the food. Okay, bacterial dysentery is caused by bacterium, and the common vector which spread the disease is house fly, which contaminate food items. Cholera is caused by Vibrio cholera bacteria and it is spread by house fly, which contaminated food items. Okay, so disease spread from infected person to healthy person. So disease are spread by direct contact or by indirect contact. So direct contact कौन सा होगा बेटा? जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट होगा, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. सो जब भी एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, चाहे वो फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, हैंड शेक करना, हग करना, किस करना, चाहे वो सेक्शुअल कॉन्टेक्ट हो. सो वेन एवर इन्फेक्टेड पर्सन comes in physical or sexual contact with a healthy person, it transmit the disease directly. और indirect transmission कैसे होगा बेटा? indirect transmission होगा जिसमें एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किए हैं, एयर हो गया. सो एक इन्फेक्टेड पर्सन जब भी स्नीज करेगा, कफ करेगा, और जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एयर में स्प्रेड होंगे उनके साथ जब एक हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाएगी. सो बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, बाय द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल, ये सारे कौन से कॉन्टेक्ट हो गए? दीज आर द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट. Okay, so here are 5F. Okay, so let's see. This is the fecal matter. So our drinking water should be safe from this fecal matter. Okay, the drinking water which is supplied in our house should be properly treated. We should properly store it. Okay, to avoid the contact of water with the fecal matter. We should wash our hand after using washroom or after defecation. Okay, we should wash our hands before preparing food and taking food. Flies. So our food and water should be covered and it should be away from the flies. Okay, these flies, house fly, they sit on the fecal matter and they transmit the disease. Okay,
We should wash our vegetable and fruits before using them. Okay, we should also avoid discharging fecal matter in the open, or we should avoid open defecation. Okay, there should be proper drainage system, proper treatment of water, proper sewage treatment plant should be there. So we should maintain these hygienic and sanitation condition. Now our next topic is organ specific and tissue specific manifestation. So the microbes which enter in our body, they target different organs and tissues in our body. ओके जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो एक स्पेसिफिक बॉडी के ऑर्गन को और टिश्यू को टारगेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोब हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे तो नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे तो कौन से ऑर्गन में जाएंगे? लंग्स में. ओके और लंग्स में जाके वो किसको इफ़ेक्ट करेंगे? हमारे लंग्स को. जैसे टीबी का जो बैक्टीरियम है वो किसको इफ़ेक्ट करेगा? वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा. ओके जो माइक्रोब्स हमारे माउथ के थ्रू एंटर करते हैं फूड के साथ, वाटर के साथ, वो किसको इफ़ेक्ट करेंगे? दे आर गोइंग टू इफ़ेक्ट आवर लीवर, आवर इंटेस्टाइन. ओके फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड, ओके और द बैक्टीरिया विच कॉजेज जॉइंटिस. तो ये वाटर के थ्रू, माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और किसको इफ़ेक्ट करेंगे बेटा? लीवर को इफ़ेक्ट करेंगे. okay so specific microorganism target specific organ and tissue in our body. कोई भी माइक्रोब, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू को टारगेट करता है. ओके जैसे वायरस है, एड्स का जो वायरस है HIV, जो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और किसको टारगेट करता है? इट टारगेट्स अवर लिम्फ नोड्स. और लिम्फ नोड्स को टारगेट करते हुए वो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो हेल्पर सेल्स हैं विच हेल्प आवर इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर एंटीबॉडीज, उनको टारगेट करके किल करता है. तो HIV वायरस हमारे कौन से सिस्टम को डैमेज करता है? इम्यून सिस्टम को, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उससे फाइट बैक करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं. और HIV वायरस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है. कैसे डैमेज करता है? टी लिम्फोसाइट सेल्स को किल करके. ओके जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर जो वायरस कॉज करता है वो कैसे एंटर करता है? मॉस्किटो बाइट, आपने अभी देखा, और हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है ये वायरस. ओके व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? सो बेसिकली इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स. तो यहाँ पे हम कैसे ट्रीट करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को? सबसे पहले रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिज़ीज़. हम किसी भी डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉमनली आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं? गार्गलिंग करने के लिए कहते हैं, आपको लीक वार्म वाटर पीने के लिए कहते हैं, जिससे आप उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर रहे हैं. और सेकेंड क्या है? टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिज़ीज़. उन माइक्रोब्स को किल करना. अब माइक्रोब्स को कैसे किल किया जाता है? बाय टेकिंग मेडिसिन्स, बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल्स द माइक्रोब्स और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, और उससे आपके जो बॉडी है उस डिसीज़ से रिकवर कर जाती है. सो रिड्यूस कैसे करेंगे आप इफ़ेक्ट को? मेडिसिन्स को लेके या फिर डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट्स को कम करके. जैसे फीवर आता है तो आपकी मदर जो कोल्ड वाटर से आपके सर पे पट्टी रखती है. ठीक है ओके आपने प्रॉपर बेड रेस्ट लेना, अपनी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करना, गार्गलिंग करना, जिससे आप कोल्ड एंड कफ के इफ़ेक्ट को कम कर पाते हैं. और किल कैसे करेंगे माइक्रोब्स को? बाय टेकिंग मेडिसिन्स, बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स. ओके टू किल द माइक्रोब्स we use antibiotics. So what are antibiotics? Antibiotics is made up of 2 words. Antibiotics, anti means against, biotic means life. So which is against life. तो ये आपकी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट. ठीक है एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्रोड्यूस हुए? इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. सो यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो किसको किल करेंगे? एंटी बैक्टीरियल मतलब किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट. ओके एंटी फंगल मीन्स जो किसको किल करती हैं? जो
फंजाई को किल करेंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स दिया हुआ है एंटीबायोटिक, जो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करती है। सो एंटीबायोटिक्स दो टाइप के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जो लिमिटेड बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बैक्टीरिया सेम है ना? तो ये कौन सी एंटीबायोटिक होगी? ये होगी नैरो, विच किल्स ओनली फ्यू बैक्टीरियाज, जो एक ही रेंज के बैक्टीरिया को किल करती है, उसे हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और ऐसी एंटीबायोटिक जो वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वाइड स्पीशीज़ को किल करती है। देखो इसमें ये सारे जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना? तो जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती है उसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, हाँ जी। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया को अपनी लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरियल की कल्चरल ग्रोथ कर रहे थे। तो वो अपनी पेट्री डिश को रख के और वहाँ पे भूल गए जिसमें वो बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा कि जिसके अंदर उन्होंने बैक्टीरियाज को रखा था, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, वहाँ पे ग्रीन कलर की फंजाई ग्रो हो गई है और उस फंगस ने उन बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है। सो वो जो फंगस थी वो कौन सी थी? ब्रेड मोल्ड। ओके, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? फंजाई के लिए, और ये ब्रेड पे ग्रो होती है इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इस फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या साइंटिफिक है बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम। और इससे जो एंटीबायोटिक बनी थी उसको पेनिसिलिन कहा जाता है। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड दैट इज पेनिसिलिन, which was discovered from Penicillium notatum fungi. ओके ओके, यहाँ पे देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं और ये दो साइंटिस्ट कौन से हैं? मार्शल एंड वॉरेन। ओके, मार्शल एंड वॉरेन को नोबेल प्राइज़ मिला था। किस लिए मिला था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पायरोली, पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, तो ये जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो पेप्टिक अल्सर ग्रो हो जाते हैं, वो पहले ऐसा माना जाता था कि लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, ऑयली फूड खाने की वजह से, लेट नाइट जागने की वजह से, स्पाइसी फूड खाने की वजह से। बट मार्शल एंड वॉरेन दो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली। किससे होते हैं ये? पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली। और इसके लिए इन्होंने एंटीबायोटिक भी डिस्कवर की थी, एमॉक्सिसाइलिन। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। सो ये एनसीईआरटी की इमेजेस ली हैं मैंने। जैसे ये किसकी इमेज है? दिस इज़ द इमेज ऑफ लेशमेनिया। लेशमेनिया क्या है? लेशमेनिया इज़ अ प्रोटोजोआ। आपको अभी पता चल गया होगा, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं ये प्रोटोजोअन्स। सो लेशमेनिया इज़ अ प्रोटोजोआ विच कॉजेज काला अजहर। काला अजहर इज़ ब्लैक फीवर। ओके, सो ब्लैक फीवर और काला अजहर इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया। लेशमेनिया बिलोंग्स टू विच किंगडम? It belongs to kingdom protista or it is a protozoan. Okay, this is the image of roundworm. एस्कैरिस की इमेज है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो, है ना बेटा? यहाँ पे देखिए ये किसकी इमेज है? फर्स्ट इमेज है सार्स वायरस की, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इस वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई थी। और उससे क्या कॉज होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे जो पिंपल्स हैं वो कॉज होते हैं। और ये जो इमेज है ये किसकी है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा इज़ अगेन अ प्रोटोजोअन और ये क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी की डिजीज़ेज़ हैं। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन? हमने हमेशा सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना? सो वी शुड टेक प्रिकॉशंस। और अभी कोविड-19 में हम सभी क्या कर रहे हैं? प्रिकॉशंस ही ले रहे हैं, है ना? अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। सो देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। जनरल वेज क्या क्या है? पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रखना,
प्रॉपर जो है सैनिटेशन की कंडीशंस को बना के रखना, वेंटिलेटेड जगह में रहना बेटा, ओवर क्राउडेड नहीं होना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, वेक्टर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, हाउस फ्लाई मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो हमारे घर के आसपास, ठीक है। स्पेसिफिक वेज कौन से हैं? स्पेसिफिक वेज है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन वो मेथड है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। ओके, सो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? वैक्सीन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है? क्या कोई मेडिसिन डाली जाती है? नहीं, वैक्सीनेशन में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को वीक या किल करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, सो दैट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के उन माइक्रोब्स को किल कर दे। ओके, सो यहाँ पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन देखो किसने डिस्कवर किया इसे? सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। किसने डिस्कवर किया भाई? ये एडवर्ड जेनर ने डिस्कस किया, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। ओके, एडवर्ड जेनर ने क्या देखा? एक टाइम था बेटा जब जो स्मॉल पॉक्स है वो एक पेंडेमिक डिजीज़ थी, जैसे कि आपकी अभी कोविड-19 चल रही है। तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि जितने भी मिल्क मैन हैं, मिल्क मेड्स हैं, उनको ये डिसीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो काऊ के साथ काम करते थे, सो देयर काउज वर इन्फेक्टेड विद काऊ पॉक्स। उनकी काऊ पॉक्स से इन्फेक्ट हो चुकी थी और वही इन्फेक्शन मिल्क मेड्स की बॉडी में जा चुका था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब स्मॉल पॉक्स और काऊ पॉक्स के जो माइक्रोब्स थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो सेम था। तो जब भी स्मॉल पॉक्स का वायरस मिल्क मेड की बॉडी के अंदर एंटर करता तो इम्यून सिस्टम समझता है कि ये काऊ पॉक्स वाला ही आ गया है, और जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ थी वो उसको किल कर देती, क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले ही एंटीबॉडीज़ को बना के स्टोर कर चुका था, है ना। मेमोरी सेल्स, जैसे आपके ब्रेन में मेमोरी पावर है, वैसे ही इम्यून सिस्टम के मेमोरी सेल्स हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है। सो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज़ एडवर्ड जेनर। और स्मॉल पॉक्स तो अब इरेडिकेट हो चुकी है ना। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वैक्सीन्स विच आर डेवलप अगेंस्ट द डिजीज़। चिकन पॉक्स के लिए वरीसेला वैक्सीन डेवलप है। डिप्थेरिया के लिए कौन सा है? DTP। ये वैक्सीन 3 डिजीज़ के लिए लगता है, देखिए, D फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टेटनस, P फॉर पर्ट्यूसिस। हिप वैक्सीन जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो टाइप है B, उससे प्रोटेक्ट करता है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेपेटाइटिस A डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, हेपेटाइटिस B जो है वो B के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है हमें। ओके, हेपेटाइटिस किसको कहते हैं बेटा? जॉइंटर्स को कहते हैं। वो स्प्रेड कैसे होती है? थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। ओके, फ्लू वैक्सीन जो है इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्शन करेगा। MMR भी एक वैक्सीन है जो 3 डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स एंड R फॉर रूबेला। ओके, मीजल, मम्स, रूबेला तीनों डिजीज़ के लिए एक ही वैक्सीन लगता है। पर्ट्यूसिस मैंने आपको बता दिया DTP का वैक्सीन है जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए लगता है। पोलियो के लिए IPV भी है और OPV इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। ओके, PCV वैक्सीन जो है वो निमोनिया के अगेंस्ट है। रोटा वायरस के अगेंस्ट RV वैक्सीन है। टेटनस का बता दिया आपको, MMR का बता दिया। ओके, सो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।